Hello everyone, welcome you all. In last lecture, we learned finance, what is finance, and what is finance, financial services, and financial instrument. What is financial instrument? Financial instrument is a monetary contract between parties. We can create, trade, or modify them. We can also settle them. A financial instrument may be evidence of ownership of part of something, means as in stocks and shares. See, bonds, which are contractual rights to receive cash, are financial instrument. There are so many financial instruments, that is stocks, bonds, uh, shares, equity shares. So market, what is market? A market is a place of where two parties are involved in transaction of goods and services in exchange of money. The two parties involved, which are two parties? These are buyer and seller. Buyer and seller. Okay. So in a market place, in the market, buyers and sellers comes on a common platform where buyer purchases goods and services and from the seller in exchange of money. So what is financial market? See, we saw that the market is a common platform for buyers and sellers. Then what is the meaning of financial market? A place where individuals are involved in any kind of financial transactions refers to finance market. Means financial market is a platform where buyers and sellers are involved in sale and purchase of financial products like shares, mutual fund, bonds, equity shares, and so on. Means financial markets include two distinct markets, that is money market and capital market. Money market and capital market. Okay. So the money, what is the money market? Money market is a compound component of the economy which provides short-term funds. The money market deals in short-term loans. Short-term loans. It is used for only short-term, and capital market is used for only long-term, generally for a period of 1 year or less than 1 year in market money. As money became a commodity, the money market become a component of the financial market. For assets involved in short term markets is done. Short term market, that is borrowing and lending, buying and selling with original maturities of 1 year or less than 1 year. Trading in money market is done over the counter and is wholesale. ओके. मनी मार्केट क्या है कि जैसे एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट है. मनी मार्केट है, इसमें फाइनेंशियल एसेट्स जो है कि वो फाइनेंशियल एसेट जो मनी के रूप में काम करते हैं. मतलब शॉर्ट टर्म यहाँ क्या है कि 1 साल का जो टाइम पीरियड है वहाँ तक शॉर्ट पीरियड इसका रहता है, या तो 1 साल से कम. मतलब फाइनेंशियल एसेट्स को मिनिमम ट्रांजेक्शन कॉस्ट के रूप में ट्रांजेक्शन किया जा सकता है. ओके. इसमें क्या क्या आता है? कॉल मनी या तो नोटिस मनी. कॉल मनी और नोटिस मनी. व्हाट इज कॉल मनी? कि जिसमें कॉल मनी में क्या होता है कि मनी मार्केट का ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है. इसमें इसका टाइम पीरियड जो है 1 डे का रहता है. जो कर्ज लेते हैं पर्सन, तो उसका जो मनी उधार देते हैं ना, तो वो 1 डे के लिए होता है, तो उसे बोलते हैं कॉल मनी. और जो 14 डेज तक दिया जाता है, मतलब 1 डे से ज़्यादा और 14 डेज तक ही होता है, तो उसे बोलते हैं नोटिस मनी. ओके. नोटिस मनी बोलते हैं. नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल भी एक शॉर्ट टर्म का ही इंस्ट्रूमेंट है. इसका टाइम पीरियड 1 ईयर का रहता है. ट्रेजरी बिल का 1 ईयर का रहता है. मतलब ट्रेजरी बिल की
जो डेज है मतलब 365 डेज, जैसे यहाँ पे 1 डे 14 डेज किया तो ट्रेजरी बिल का 365 डेज का ये ट्रेजरी बिल दिया जाता है। दूसरा ये कौन देता है ट्रेजरी बिल, कि जो भी बैंक्स है या तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो उनके द्वारा वो ट्रेजरी बिल दिया जाता है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट डिपॉजिट, सर्टिफिकेट डिपॉजिट भी एक शॉर्ट टर्म का ही इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंस्ट्रूमेंट है, जो बैंक या तो बैंक के जो या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो जैसे नीड है, सामने वाले की जो नीड है उस हिसाब से वो देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कैपिटल मार्केट में आता है। डिबेंचर और बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर्स। तो डिबेंचर का जो टाइम पीरियड है वो लंबे समय तक रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वो मतलब जो बड़ी मात्रा में किसी को पैसे उधार चाहिए होते तो वो इसमें ले सकते हैं। ओके। डिबेंचर का जो उपयोग है वो कौन करता है, कि कंपनी को जो फंड चाहिए होता है तो वो कंपनी को जो फंड है वो बढ़ाने के लिए, वो इंक्रीज करने के लिए डिबेंचर्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि शेयर कैपिटल ये नहीं कर सकते तो कैपिटल स्ट्रक्चर के जैसे डिबेंचर्स भी होते हैं। डिबेंचर्स होल्डर्स जो है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है वही डिबेंचर होल्डर कहते हैं। दूसरा है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड इश्यूअर, मतलब जो भी कंपनी को अपना जो फंड है वो इंक्रीज करने के लिए डिबेंचर और बॉन्ड्स यूज किए जाते हैं। बॉन्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिटवीन टू companies or government issues bonds because they need to borrow large amount of money, large amount of money अगर चाहिए तो बॉन्ड के ऊपर लिखा जाता है। दे इशू बॉन्ड्स एंड इन्वेस्टर्स बाय देम एंड मतलब देयर बाय गिवन द पीपल हु इशू द बॉन्ड मनी। बॉन्ड्स हैव अ मैच्योरिटी डेट, इसको मैच्योरिटी डेट भी कहते हैं। जिस तरह हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए हम किसी से सेविंग में से मनी यूज़ करते हैं या तो किसी से उधार लेते हैं, है ना। तो जब गवर्नमेंट को अगर ज़रूरत है मनी की तो वो कैसे लेते हैं, तो वो बॉन्ड जारी करते हैं। और ये बॉन्ड जो है वो जो बिग इन्वेस्टर्स है वो या तो कॉमन पीपल है उनको वो बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं। ठीक है। ये जो बॉन्ड्स है उसको डेट डेट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं या तो डेट लेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये लेटर के जैसे लिखा हुआ होता है। उसके ऊपर सब जो भी बॉन्ड के ऊपर सब लिखा होता है, जो इंटरेस्ट रेट है, उसका टाइम पीरियड क्या है, ये सब बातें उस बॉन्ड के लेटर के ऊपर लिखा जाता है। तो इसलिए उसको इंस्ट्रूमेंट को लेटर भी बोलते हैं। ठीक है। A market can be described as a money market if it is composed of highly liquid short-term assets. Money market funds typically invest in government securities. Okay, that is certificate of deposits, call or notice money, short-term assets. Money market funds typically invest in government securities. Okay, then uh, equity shares. इक्विटी शेयर्स क्या है, कि इक्विटी शेयर्स आर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज फॉर एनी company. These shares are issued to the general public and non-redeemable in nature. Means investor in such shares hold the rights to vote and share profits and claim assets of a company. Means equity share का जो इक्विटी शेयर जो है उसको ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। इक्विटी शेयर्स जो है वो शॉर्ट में सिर्फ शेयर भी कहा जाता है इसको, मतलब शेयर के आगे या पीछे कुछ भी नहीं लिखा होता तो वो क्या होता है, इक्विटी शेयर। ओके। जो उन्हें कंपनी का रियल मालिक भी कहा जाता है। इक्विटी शेयर जिनके पास होते हैं वो उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव, derivative is an instrument which value is derived one from one or more underlying assets, things or
प्रोडक्ट्स। मीन डेरिवेटिव एक प्रोडक्ट है, इंस्ट्रूमेंट है और स्टॉक मार्केट के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस है जिसका प्राइस एसेट या स्टॉक्स के इंडेक्स के ऊपर फिक्स होता है। जैसे कि दूध का डेरिवेटिव क्या है, कर्ड है। मतलब अगर दूध नहीं है तो हम कर्ड नहीं बना सकते। तो कर्ड किसके ऊपर डिपेंड है, दूध के ऊपर। तो दूध डेरिवेटिव है किसका, कर्ड का। ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस।